سندھ ہائی کورٹ نے FBR کے کوالیفائنگ ٹیسٹ کے خلاف کلیئرنگ ایجنٹس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ تجربہ کار لائسنس ہولڈرز کو دوبارہ امتحان دینا امتیازی سلوک ہے۔ مزید جانتے ہیں شوکت قرائی سے۔ شوکت بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ 200 سے زائد کسٹم ایجنٹ تھے جن کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ان کا درخواست میں موقف ہے کہ ان سے دوبارہ امتحان نہ لیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک جو امتحانی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی جو مارکنگ ہوتی ہے، اس کے خلاف ان کی درخواستیں تھیں۔ ان کا درخواست میں موقف ہے کہ جب امتحانی پرچے ٹیسٹ کے بعد جب تحریری پرچے ہوتے ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں تو اس میں سے اس کے 2 سیکشن ہوتے ہیں، ایک 80 مارکس کا ہوتا ہے، دوسرا 20 مارکس کا ہوتا ہے۔ اگر 80 مارکس میں وہ 50% پیپر مارکس حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرا جو سیکشن ہے وہ بھی چیک نہیں کیا جائے گا، اسے فیل تصور کیا جائے گا۔ تو اس میں ان کا موقف ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر 2 پیپر ہیں تو دونوں پیپر چیک کیے جائیں، پھر اس کا کوئی کرائٹیریا بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کسٹم ایجنٹ ہیں جو 2005 سے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پروویژنل ایک عارضی جو ہے ان کے پاس لائسنس ہوتا تھا کسٹم ایجنٹ کا، اس پر وہ کام کرتے تھے۔ ہر 6 ماہ کے بعد اس لائسنس میں جو ہے توسیع کی جاتی تھی، لیکن ان تمام کو اب کہا ہے کہ دوبارہ وہ 19 جولائی کو ٹیسٹ ہو رہی ہے، اس میں سب اپیئر ہوں۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ پروویژنل لائسنس پر کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ کام کر رہے تھے، اب بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ان سے امتحان نہ لیا جائے، دوبارہ امتحان نہ لیا جائے۔ ان کا ایک بار پہلے بھی امتحان ہو چکا ہے 2013 میں، لیکن وہ ان نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا جس کی وجہ سے پروویژنل لائسنس بھی جاری کیے گئے تھے، لیکن عدالت نے کہا، تمام وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا ہے کہ آج ہی ان درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ جو امتحان ہیں وہ 19 جولائی کو ہو رہے ہیں، اس میں صرف 2 دن باقی۔ جی، مارواڑی محلہ بہرہ پیر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ آج صبح بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی، جس کا دورانیہ 8 گھنٹے سے زائد تھا۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ مزید جانتے ہیں رمشا اسماعیل سے۔ رمشا بتائیے گا۔ بالکل، شہر قائم میں اگر ہم بات کریں لوڈ شیڈنگ کی تو شہر کے مختلف علاقوں کی میں 10 سے 12 گھنٹے کی بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، بلکہ 12 گھنٹے سے بھی زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر جاتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے۔ مارواڑی محلے میں اس وقت میں موجود ہوں بورا پیر کے، جہاں پر آج صبح 5 بجے کی لائٹ گئی تھی۔ شہریوں کو اس دوران شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، گرمی میں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جمعے کا دن ہے، آج بھی لائٹ نہیں تھی، کتنا مشکل؟ بہت مشکل ہے، 12 گھنٹے لائٹیں جاتی ہے، کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ غریبوں کے لیے اتنے بل آتے ہیں، اب ہم کہاں سے کریں گے؟ اور کم کرانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں جاؤ یہاں جاؤ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے باجی، ایک کمانا۔ آج جمعے کے دن بھی لائٹ گئی ہوئی ہے، کتنا مشکل؟ آج بھی گئی، بہت مشکل ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، گھر سے گرم ہو جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے۔ اور امی پریشان، پھر گھر والے پریشان، بولنے جاتے تو بل پورے آتے ہیں؟ بل پورے آتے ہیں، بہت آتے ہیں، 5-5 ہزار ایسے ہم لوگ بہت۔ بالکل، بل پورے آتے ہیں لیکن بجلی گھروں میں نہیں آتی۔ جمعے کے روز بھی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارواڑی محلے کے میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر جو ہے وہ تقریباً 10 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے، جس کے باعث شہری جو ہے وہ یہاں پر پریشان نظر آتے ہیں۔ جی ناظرین، بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ گلشن اقبال کی بے نظیر بستی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ چند گھروں کی عدم ادائیگی کے باعث پورے علاقے کی بجلی 3 روز سے منقطع ہے۔ باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے صارفین بھی شدید اذیت کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے۔ جی اقصیٰ۔ جی بالکل، شہر قائد میں ایک مسئلہ نہیں، مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو کہیں پانی کا بحران ہے، کہیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور سب سے ستم یہ ہے کہ بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں بے نظیر بستی میں، اور یہاں میرے عقب میں شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بھائی، آپ مجھے بتائے گا کہ یہاں پر بجلی کا مسئلہ کب سے ہے؟ یہ کافی پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور ابھی تو 3 دن سے یہاں بجلی بند کی انہوں نے۔ تو کیا وجہ بتا رہے ہیں بجلی بند کرنے کی؟ وجہ تو وہ ان کے پاس جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں کے بل کا مسئلہ، بل کا ایشو ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے بل پے کیے ہیں؟ آپ بل بھرے ہوئے ہیں، زیادہ تو بھرے ہوئے لوگوں نے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں 100 گھر ایسے ہیں کہ جن کے بل بھرے ہوئے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ لائٹ کاٹ دی یہاں کی۔
लाइट गई हुई होती है, कितनी परेशानी होती है, कैसे गुजारा करते हैं? परेशानी तो बस गर्मी तो है, तो बच्चे भी हैं, तो गुजारा तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हवा चलाई इससे फिर निज़ाम थोड़ा चल जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी अदम अदायगी की वजह से इनकी 3 दिन से बिजली कट की हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो बिजली का बिल अदा करते हैं तो उनकी बिजली क्यों कट की गई है, जो बिल अदा करते हैं उनको बिजली दी जाए, और जिनकी अदम अदायगी की वजह से कट की हुई है तो उनकी वजह से जो दूसरे शहरी हैं वो भी अजियत का शिकार हैं। जी, मौसमियात से पहलवान गोट जाने वाली सड़क पर मरम्मती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सड़क की खुदाई के दौरान मीठे पानी की लाइनें मुख्तलिफ मकामात से फट गईं, जिसके बायस हजारों गैलन साफ पानी ज़ाया हो रहा है। एक जानिब इलाका मकीन पीने के साफ पानी के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ सड़क पर ज़ाया हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जौहर के वासियों को पानी पीने को तो दस्तयाब नहीं है और मीठा पानी उनको मिल तो नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर ज़ाया होने के लिए पानी जो है वो यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे वहाँ पर इस पानी में नहा रहे हैं, कोई ये गटर का पानी नहीं बल्कि मीठा साफ शफाफ सा पानी है, जिसमें बच्चे जो है वो नहा रहे मौजे कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी जो है वो लाइनें अंदर से जो है वो खोदी गई थी, जो कि अब जो है वो सारा मीठा पानी सड़क ज़ाया हो रहा है सड़क पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क जो पहलवान गोट तक जाने वाली सड़क है, पूरी एक सड़क जो है वो बंद कर दी गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शगाफ भी पड़ गया है। पहले यहाँ से पानी बह रहा था, अब यहाँ पर जो एक बड़ा सा शगाफ पड़ गया है, जो कि हादसा का सबब भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे भी, और बच्चे तो जाहिर है उनको इतना समझाना मुश्किल होता है कि ये शगाफ क्या चीज़ है और ये पानी बह रहा है तो इसमें इतना क्यों मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। भाई, हमें ये बताइएगा ये मसला जो है वो यहाँ पे कब से दरपेश है, और जब आप जौहर के बासी आपको ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पर पानी का इतना मसला है, तो यहाँ पर मीठा पानी सड़कों पे बह रहा है। जी, ये 6 महीनों से तकरीबन या इससे भी ज़्यादा का ये मसला है कि ये रोडें टूटी हैं और पानी लीकेज है और जगह जगह गड्ढे बड़े हुए हैं और आने जाने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं और रात को कहीं गिर सकता है बंदा, ये भी मसाइल है। अच्छा भाई, आप लोगों ने इंतजामिया को कभी शिकायत कराई है, क्योंकि मीठा पानी घरों में नहीं आता, यहाँ पे बह रहा है? बहुत दफ़ा शिकायतें की हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही, कोई इस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं हो रहा और दूर दूर तक के हैं। बिल्कुल, आपने शहरी की बात तो सुनी, बच्चे भी मौजूद है। मुझे बताओ इतने ये मीठे पानी में क्यों नहा रहे हो भाई? घर में पानी नहीं आ रहा क्या? वैसे नहा रहे हैं। क्यों नहा रहे हो? क्यों नहा रहे हो? ना सरिये तोड़ने गए हुए थे ना, फिर खराब हो गए ना कपड़े, इसलिए। तो गंदे हो गए तो घर पे जाके नहाओ ना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मीठा पानी जो है वो सड़कों पर बह रहा है, और बच्चों का यही कहना है कि घरों में पानी नहीं मिल रहा मीठा, तो क्यों ना फिर जो है वो सड़कों पर ही नहा लिया जाए, क्योंकि मीठा पानी जो है वो सड़कों पर जब ज़ाया होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो यहाँ पर फ़ायदा उठाएगा ही ना। और उन साथ साथ आवाम का यही कहना है कि यहाँ पर इंतजामिया को कई बार जो है वो शिकायतें दर्ज कराई, मगर अभी तक कोई सुनवाई ना हो सकी है। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 की खस्ता हाल सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई है। 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद सड़क की मुरम्मत न होने से आमदोरफ्त और रोजगार मुतासिर है। आगाह कर रही हैं दुआ शकील प्राचा। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 की एक सड़क पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन इमरान एके दिखा सके तो इस सड़क की हालत ऐसी है कि ये लगता ही नहीं कि कराची जैसे बड़े शहर की सड़कें हैं। मेन ये रोड है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 की, और आसपास आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह भी हैं, रिक्शा वगैरह भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे हिचकोले खाती हुई आ रही है, खड्डे यहाँ पे पड़े हुए हैं, रोड ऐसी यहाँ पे हो रही है कि जैसे कभी बनी ही नहीं थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कब से सड़क की ये हालत है, क्यों इसको तामीर नहीं करवाया जा रहा, बनवाया क्यों नहीं जा रहा इसको? ये सड़क जो है तकरीबन 1 साल हो गया है इसको जो है ख़राब होते हुए। कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाकी तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से क्यों नहीं बनी सड़क? क्या मुश्किलात पेश आती है आपको? रिक्शा वगैरह चलाते हैं आप? असल में मुश्किलात रिक्शे वालों को थोड़ी, सबको होती है। तो अमूमन जो नुकसान होता है गाड़ियों का, और मरीज़ को तकलीफ़ होती है इमरजेंसी जाने के लिए। क्या तकलीफ होती है? आप जो चलाते हैं गाड़ी? हमारा तो नुकसान होता है, सवारी को टाइम लगता है जाने में, और हमारे जो
गाड़ी के पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि यहाँ पे सड़क का तकरीबन साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये सड़क ऐसी ही है, कंस्ट्रक्शन बराए नाम जो है वो की जा रही है, लेकिन अब तक सड़क जो है वो इस तरह से बन नहीं सकी। और जैसे कि ये रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शे के अंदर जो सवारियाँ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। और साथ ही साथ जब रिक्शे सड़क पर चलते हैं तो उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उसके टायर्स वगैरह ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नासरीन, मलिर एक्सप्रेसवे पर तामीराती काम की तैयारी 18 और 19 जुलाई को मलिर नदी पुल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से सफर से कबल मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने की अपील कर दी है। फैदाबाद से आने वाली ट्रैफिक शराय भुट्टो यू टर्न के जरिए मलिर जा सकेगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे के पुल पे मौजूद हूँ। मेरे एक साइड जो है वो बात की जाए दाएं जानिब तो मलिर एक्सप्रेस वे का पुल है, और बात की जाए दूसरी साइड की तो यहाँ पर जो है वो मलिर नदी का जो वो पुल है, जो इस वक्त ट्रैफिक की रवानगी जो है वो रवा दवा रखा हुआ है। लेकिन मलिर एक्सप्रेस वे के तामीराती काम के लिए 18 और 19 जुलाई को जो है वो ये जो है वो ऐलान किया गया है कि मलिर नदी पुल को जो है वो 2 दिन जो है वो बंद रखा जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो वो यहाँ पर तरक्याती काम किया जाएगा। इस वक्त आप मेरे कम में देख भी सकते हैं, यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे का जो वो काम जारी है। जबकि चूंकि इस काम को मुकम्मल करने के लिए इसमें मलिर नदी पुल की जो वो जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी शहरों के आमदोरफ्त के लिए जो है वो बंद किया जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो डायवर्जन बताई गई है। कायदाबाद से आने वाले ट्रैफिक को शारे भुट्टो के जरिए जो है वो यू टर्न किया जाएगा, ताकि शहरी जो वो मलिर में दाखिल हो सके। जबकि ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को सफर से कबल जो मुतबादिल रूट्स जो है वो इख्तियार करने की जो अपील कर दी गई है। और यही जो है वो बताने की वजह भी है कि मलिर नदी पुल को जो है वो दो दिनों के लिए जो है इतराफी ट्रैफिक आर्जी तौर पर जो मुअत्तल किया जाएगा। शहरी मुतबादिल रास्ता जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो काफी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो यकीनी तौर पर 2 दिन तक जब ये पुल बंद रहेगा तो ट्रैफिक को जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, इसलिए जो है वो उसको डायवर्जन दी गई है। और 18 और 19 जुलाई को यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे का तामीराती काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद 20 जुलाई से दोबारा या फिर जो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत होंगी उसको मद्देनजर रखते हुए इस पुल को जो वो बहाल कर दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए। जी, वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स एजेंडे पर केपीटी का क्रैकडाउन, केपीटी के तजावुज़ात के खिलाफ मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयाँ, स्टैंडसपर्ट में मुश्तरका ऑपरेशन, 2 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार, 40 गैर कानूनी झोंपड़ियाँ मस्मार, कब्जे खत्म। वेस्ट भारत में अदालती हुक्म पर प्लाट्स वागुजार प्लॉट सील, केपीटी स्टेट के हवाले। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए इससे मुताल्लिक। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स के एजेंडे के तहत कराची पोर्ट ट्रस्ट में सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ के खिलाफ जो है मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करते हुए कई एकड़ कीमती जमीन वागुजार करा दी है। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक सेंसपेट में केपीटी की हर साइट के सामने कायम गैर कानूनी तजावुज़ के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर किमाड़ी की निगरानी में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और केपीटी के अमले ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 40 गैर कानूनी लकड़ी की झोपड़ियां मिसमार कर दी गई और तकरीबन 2 एकड़ सरकारी अराजी जो है वागुजार करा ली गई। तर्जुमान का कहना है वेस्ट वाफ में अदालती अहकामात और 11/4 का कब्जा भी वागुजार कराया गया। E/4 पर प्लॉट नंबर जो था उसके ऊपर कार्रवाई की, दोनों प्लॉट को सील करके केपीटी स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। हुकाम का कहना है अदालती अहकामात और अमल दरामद के जरिए सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। दूसरी जानब गुलशन सिकंदराबाद में भी केपीटी ने इंसदाद तजावुज़ात का बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके दौरान करोड़ रुपए मालियत की 5 एकड़ कीमती सरकारी अराजी वागुजार कराई। कार्रवाई में गैर कानूनी सीमेंट के ढांचे, मवेशी फार्म्स और जेर तामीर इमारतें भी मिसमार कर दी गई हैं। और केपीटी हुकाम का कहना है सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। माइका करंट अकाउंट सरप्लस जून में खसारे में तब्दील। जून में करंट अकाउंट खसारा 64 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक जून का खसारा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माली साल 2026 करंट अकाउंट 13 करोड़ 90 लाख डॉलर खसारे में। माली साल 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस था। दरामदात में इजाफा, तरतीलाती ज़र में कमी से खसारा बढ़ा। माली साल 2026 में बरामदात 5% कम रहे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक के मुताबिक जून 26 में करंट अकाउंट सरप्लस से फिर खसारे में तब्दील हो गया है। मरकजी बैंक के मुताबिक जून 26 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बढ़कर 64 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया, जो
गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरस की बुलंद तरीन सतह है। और ये भी बताया कि मई 26 में $50 करोड़ सरप्लस था करंट अकाउंट, ताहम जून में दरामदात में नुमाया इजाफे और तरसीलाती दर में कमी के बाइस करंट अकाउंट दोबारा खसारे में चला गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 26 के इख्तिताम पर मजमूई करंट अकाउंट $13 करोड़ 90 लाख खसारे में रहा, जबकि माली साल 2025 में यही खाता जो है $1 अरब 83 करोड़ 80 लाख सरप्लस था। रिपोर्ट में बताया माली साल 26 में पाकिस्तान की बरामदात $30 अरब 80 करोड़ रही है, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले तकरीबन 5% कम रही है, जबकि बरामदात जो है उसका बिल $64 अरब 50 करोड़ पर पहुंच गए, जो तकरीबन 4 साल की बुलंद तरीन सतह करार दी जा रही है। जी बेअदशिफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुटखा और मावा केस का फैसला, 2 मुलजिमान को 3 साल कैद। लियारी से गुटखा बरामद की केस, अदालत ने मुलजिमान को सजा सुना दी। मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा अदालती फैसला, गुटखा माफिया को झटका, 2 मुलजिमान जेल रवाना। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत से गुटखे मावे की तफसील और बरामदगी केस के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है, जहां अदालत ने 2 मुलजिमान अकबर और अब्दुल गफूर को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया, जबकि मुलजिमान की जमानत मंसूख करके उन्हें जेल भेजने का हुक्म भी दे दिया है। पुलिस ने जुमा बलोच रोड लियारी से 2 मुलजिमान के कब्जे से गुटखा और मावा की बड़ी खेप बरामद हुई थी। मुलजिमान से गुटखा और मावा की पुड़ियां बरामद हुई थी, जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवाना ने अदालत से मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा की थी। प्रोसिक्यूटर रिजवाना ने अदालत को बताया कि जो बरामद शुदा मवाद है वो फरोख्त की गर्ज से रखा गया था। अदालत ने अपने रिमार्क देते हुए कहा कि केमिकल रिपोर्ट के मुताबिक बरामद मवाद इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। बरामद गुटखा और मावा कैंसर जैसे मूजी मर्ज का सबब बन सकता है, जबकि पुलिस गवाहों के बयानात में कोई मौसर तजाद सामने नहीं आया। अदालत ने बरामद गुटखा और मावा कानून के मुताबिक तलब करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इस्तगासा इन मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। वाज़ेह रहे मुलजिमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना कल्ली में दर्ज किया गया था। ठीक है जवाद, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि कराची वालों के लिए ज़हनी दबाव वबाल बन गया है। नफ्सियाती बीमारियों के केसेस में इजाफा होने लगा। टीबी माहिरीन का कहना है कि बेचैनी, घबराहट, खौफ या डिप्रेशन की अलामत को नज़रअंदाज ना किया जाए, फौरी माहिर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जहनी बीमारियों के शिकार अफराद के लिए मुफ्त इलाज और तशखीस का मरकज कायम किया जा रहा है कुरंगी में, जो कि 5 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहाँ पे तशखीस से लेकर इलाज की तमाम सहूलियत फराहम की जाएंगी, जिसका नाम चिल्ड्रन ऑफ आदम होगा। और इस हवाले से 3 अस्पताल जो है वो फाल हैं और चौथा जो है बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जहनी बीमारियों का अस्पताल होगा। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट की तफसीलात बताइए कि बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि तमाम सहूलियात मुफ्त होंगी और कितनी बीमारी फैलती जा रही है जिसके लिए बहुत बड़ी नेमत होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तमाम सहूलियात मुफ्त होंगी और ये अपनी नवैयत का साउथ एशिया का एक यूनिक हॉस्पिटल होगा। चिल्ड्रन ऑफ एडम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ग्लोबल सीईओ शहजाद सदन साहब हैं। उनका ये सोच थी कि हम इस फील्ड को जिसमें न्यूरो साइकेट्री है उसको उन्होंने खासतौर पर चुना पाकिस्तान के लिए कि हम यहाँ पे शुरू करें। और जब रिसर्च की तो तय हुआ कि कराची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जब स्टैटिस्टिक्स देखे गए तो 37% लोग जो थे वो मुख्तलिफ ज़हनी अमराज में मुब्तला थे। और फिर जब सारा मामलात हुकूमत सिंध के सामने पेश किए गए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला सिंध के और वज़ीर सेहत के, जिन्होंने बहुत ताउन किया और आज इस मौके पे हैं कि हम 4 ओपीडीज ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसमें पीपी नोड के तहत 3 ओपीडीज चल रही हैं फेडरल बियरिया, दम्बा गोट और गडाप में। और उसके अलावा 2 लैंड्स हैं कुरंगी में जहाँ पे हमारी ऑलरेडी ओपीडी चल रही है, गडाप में ऑलरेडी ओपीडी चल रही है। और उसमें हमने रिसेंट पास में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना था कि एक ही छत के नीचे ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी मुल्क भर में और सिंध भर में जहनी बीमारियों के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है और इस तरह का शोबा कायम होने की वजह से मजीद मरीजों को बेहतर सहूलियत मिल सकेंगी और तमाम सहूलियत जो है वो मुफ्त फराहम की जाएंगी। जी, साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने अली असगर वली का ऑल पाकिस्तान स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनका कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट से बड़े मुकाबलों की तैयारी और नए टैलेंट को फरोग मिलता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद।
मौजूद है नया नाज़ाबाद में, जहां पर ऑल पाकिस्तान अली असगर वलीका स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और आज अब से कुछ देर पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं नॉकआउट मरहले के लिए मोहम्मद आसिफ, जो साबिक आलमी चैंपियन है, और अब उनका मुकाबला है खिज़र से। हम उनसे बात करेंगे कि पहले आसिफ भाई कैसा, एक तो ये टूर्नामेंट कैसा जा रहा है ये बताएं थोड़ा, फिर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा। जी देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कराची वालों ने। नया नाज़माबाद हो गया, वर्ल्ड होम स्नूकर वाले हो गए, फैज़ान स्टील वाले, चीना स्नूकर वाले, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैं सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी काविश की है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया है। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। इसमें हमारे जूनियर प्लेयर्स जो हैं उनको काफ़ी हेल्प होती है इस चीज़ से, उनको टूर्नामेंट ज़्यादा मिलेंगे तो उनका एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा और अपने से सीनियर प्लेयरों के साथ खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसको गेम में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। इस हवाले से ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। आसिफ भाई, इसमें किस तरह देख रहे हैं, कल आपने 128 का ब्रेक खेला है और अब तक ये पहले दिन का तो हाईएस्ट ब्रेक था, अभी तक भी हाईएस्ट ब्रेक है, तो आज क्या मजीद 147 करने जा रहे हैं क्या? देखिए, ये प्लान ये होता है कि अपना गेम अच्छा खेलें और लोगों को एंजॉय करा सके और लोग हमारी गेम को एंजॉय करें, और उसमें ब्रेक्स जो है 147 तो खैर बोल के तो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम लोगों को एक अच्छी गेम देखने को मिले, लोग इस गेम की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा पैदा हो। उस हवाले से कुछ प्लेयर होते हैं वो अपनी कैजुअल गेम ही खेलते रहते हैं और कुछ प्लेयर होते हैं वो अपने मैच पे जाके लोगों को एंटरटेन करना शायद भूल जाते हैं। तो खैर मेरा गेम शुरू से नेचुरली ऐसा है कि मैं लोगों को भी एंटरटेन करता हूँ और अपनी गेम जो है वो भी उस तरीके से खेलता हूँ। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कि ये टूर्नामेंट में अच्छे ब्रेक्स होंगे और प्लेयर एंजॉय। आसिफ भाई, इसमें किस तरह देख रहे हैं, ये तैयारी भी होगी आपके बड़े इवेंट्स के लिए, एक बड़ा पूरे पाकिस्तान से टॉप रैंकिंग स्नूकर खिलाड़ी आए हुए हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें जब तैयारी होगी तो इंटरनेशनल इवेंट जो आपके मुस्तकबिल करीब में आने वाले इसमें आपको हिस्सा लेना है तो अच्छी बेहतर उम्मीद के साथ आप वहाँ जा सकेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ टूर्नामेंट जो है वो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। उसमें जब इंटरनेशनल जाते हैं खेलने के लिए, तो अगर आपको यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे उस तरह का प्लेटफॉर्म, उस तरह के टूर्नामेंट्स नहीं मिलते, तो वहाँ पे जाके शुरू में थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं जो कि सारे प्लेयर जो हैं वो वहाँ पे जाके मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए इस तरह के इवेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि प्लेयर जो है वो अपनी गेम में रह सकें। अब खिज़र से आपका मुकाबला है, 2 मैच आप जीत चुके हैं, नॉकआउट में भी पहुंच चुके हैं, किस तरह देख रहे हैं आप अगले मैच को? देखें जी, कोशिश करेंगे कि आज भी अच्छा खेलें और आज का मैच भी विन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुना आपने मोहम्मद आसिफ अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, उनका कहना था कि कोशिश ज़्यादा अच्छा खेलें और उनका कहना था कि ये टूर्नामेंट मुस्तकबिल के बड़े इवेंट की भी तैयारी का हिस्सा होगी और उन्हें उम्मीद है कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब तक 128 का ब्रेक वो बना चुके हैं और उनकी ख्वाहिश है कि मजीद इस ब्रेक का रिकॉर्ड बेहतर करें ताकि टूर्नामेंट में उनका नाम बेहतर अंदाज में शामिल हो जाए। सिंध में 2,75,000 खानदानों में मुफ्त सोलर किट्स तकसीम की जाएंगी। मंसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास हुआ। इजलास में मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 18 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सारिफीन मुस्तफीद होंगे। हर मुस्तहिक खानदान को सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट्स दी जाएंगी। वज़ीर आला ने मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी कर दी है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला किया गया। इजलास में तामीराती काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुख्तलिफ सेक्शंस पर काम तेजी से जारी है। इजलास में यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला भी किया गया है। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के लिए अहम सफरी मनसूबा है। उन्होंने मुताल्लिका इदारों को मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने महकमे स्कूल तालीम के ड्यूटी चोर 10,000 से ज्यादा मुलाजमीन को घोस्ट करार देकर मुलाजमत से निकालने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर हैदराबाद डिवीजन के 200 से ज्यादा मुलाजमीन को इश्तिहारी घोस्ट करार देकर मुलाजमत से फारिग करने की तैयारी। महकमा स्कूल तालीम के मुताबिक घोस्ट मुलाजमीन में नायब कासिद, चौकीदार, माली, लैब अटेंडेंट, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स शामिल हैं। ये मुलाजमीन शो पोस्ट नोटिस में वजाहत नहीं कर सके हैं। सबसे ज्यादा घोस्टर मुलाजमीन हैदराबाद डिवीजन में पाए गए।
महकमा ने हैदराबाद डिवीजन के 200 से जायद मुलाजमीन को इश्तिहारी घोस्ट करार दे दिया। बाकी 5 डिवीजनों में भी हजारों की तादाद में घोस्ट मुलाजमीन पाए गए हैं। इनमें कराची, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीर आबाद शामिल हैं। अगस्त में घोस्ट मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। जिना लीग अंडर 15 के सनसनीखेज फाइनल में ऑल अमीन एकेडमी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए स्क्राइबल एकेडमी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के केसीसी स्टेडियम में जिना लीग अंडर 15 रंगारंग फाइनल दिलचस्प मुकाबले में अल अमीन एकेडमी ने स्क्राइबल एकेडमी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए स्क्राइबल एकेडमी ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 102 रन का हदफ दिया। अल अमीन एकेडमी ने सिर्फ 15.2 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल किया, जबकि अल अमीन की जानिब से मसूद अली और कदीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। कप्तान आयश मलिक का कहना था, जीत का क्रेडिट हमारे कोच नवीदुल अमीन को जाता है। तमाम खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया। इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम फाते हुई और क्रेडिट नवेद अल अमीन जो हमारे हेड कोच भी हैं उनको ही जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी हमारी टीम बनाई और इतने अच्छे से पूरे टूर्नामेंट लेके चले और ये रिजल्ट हम जीते टूर्नामेंट। पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास फास्ट बॉलर और मैच रेफरी अमीरुद्दीन अंसारी ने कहा कि इस नौयत के टूर्नामेंट नौजवान क्रिकेटर की सलाहियतें निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस एज की क्रिकेट कराना, इस एज की क्रिकेट को प्लेयरों को बनाना सबसे बड़ा कारनामा है। कारनामा के साथ साथ क्रिकेट के सही मानों में सुंदर है। इसी प्लेयरों के कराची पाकिस्तान का वो वाइड सेंटर है जिसने आज से 30 साल पहले अंडर 15 अंडर 17 टूर्नामेंट कराया। फाइनल के अख्तिताम पर मुनक्किदा परवकार तकरीब में फाते और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल और इनामात तकसीम किए गए। मुंतजमीन का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट ही पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल के बासलाहियत खिलाड़ी फराहम करते हैं। मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। माली साल 2025-26 में टेक्सटाइल बरामदात में मामूली कमी। टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि दीगर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 8.67% इजाफे से 89 करोड़ डॉलर 8 लाख रही हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब 93 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 0.26% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 8.67% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये बढ़कर 79 करोड़ 8 लाख डॉलर तक पहुँच गयी। अदद शुमार के मुताबिक इस इजाफे पर सबसे बड़ा किरदार रेडीमेड गारमेंट्स का रहा, जिनकी बरामदात 3.87% इजाफे के बाद 4 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गयी, जबकि गुज़िश्ता माली साल ये 4 अरब 13 करोड़ डॉलर थी। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल 2025-26 में कॉटन यार्न की बरामदात भी 12.4% इजाफे के साथ 73 करोड़ 50 लाख डॉलर रही, जो एक साल कबल 68 करोड़ डॉलर थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाम कपास की बरामदात में गैर मामूली 199% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2025-26 में खाम कपास की बरामदात 26 लाख डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल ये 8,71,000 डॉलर थी। नेटवेयर की बरामदात 0.88% कमी के बाद 4 अरब 96 करोड़ 60 लाख डॉलर रही, जबकि बेडवेयर की बरामदात मामूली 0.01% कमी से 3 अरब 11 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गयी। इस तरह तौलियों की बरामदात 1.93% कम होकर 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, कॉटन क्लॉथ की बरामदात 7.55% कमी के बाद 1 अरब 67 करोड़ डॉलर, जबकि खैमों, कैनवस और तरपाल की बरामदात 3.81% कमी के बाद 12 करोड़ डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक तौलियों और बेडवेयर के अलावा दीगर मसनूआत की बरामदात भी 0.71% कमी के साथ 77 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गयी। माहाना बुनियाद पर भी टेक्सटाइल बरामदात में नुमाया कमी देखी गयी। जून 2026 में टेक्सटाइल बरामदात सालाना बुनियाद पर 16.71% कम रही और एक माह के दौरान बरामदात का हजम 1 अरब 26 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जबकि जून 2025 में ये 1 अरब 52 करोड़ 10 लाख डॉलर था। अशरफ खान, सिटी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।